हेलो। हेलो। So good afternoon, everyone. Okay, audio video fine, guys. Yes, everyone able to hear me? Yes. Okay, that's great. Good. Okay, once we were talking about organism and population, video is pausing in between. Okay. No worries, ये वीडियो मैं अभी बंद ही कर देती हूँ. Right. Because नेट का पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है बीच बीच में. ओके, बैकग्राउंड की आवाज आ रही है. जस्ट गिव मी अ सेक. एक सेकेंड. Okay, but now is it fine? Background voice and all that. Okay, guys. Yes, ma'am. Good. So as we were talking about organism and population, right? So let's continue with the topic. Right. Okay. How does sex ratio indicate a population health? Okay, Anshika. Basically, बच्चे हम ये कहते हैं कि in the condition, right, when we will say population attributes के बारे में पढ़ते हैं तो हमने age group के बारे में पढ़ा था. And while talking about the age group, we talk about the pre-reproductive, reproductive, and post-reproductive group. Let us suppose in the reproductive group, right? If I will say कि एक reproductive group में अगर हम देखें तो हमारे पास reproductive group में male और female का equal proportion ratio मुझे नहीं मिल रहा है. Right, I found the ratio which is to be disturbing कि मेल बहुत ज़्यादा है फीमेल बहुत कम है या फिर फीमेल बहुत ज़्यादा है मेल बहुत कम है. Still you cannot say it is showing the expanding growth. राइट क्यों नहीं कह सकते एक्सपैंडिंग ग्रोथ शो कर रहा है क्योंकि उसमें रिप्रोडक्शन के चांसेस ही मिनिमाइज्ड हो चुके हैं. राइट बिकॉज अपोजिट सेक्स आर नॉट इन दैट प्रोपोर्शन जो होना चाहिए. राइट दैट्स व्हाई इट इज बीइंग द वन जो पॉपुलेशन हेल्थ को डिफाइन करता है. राइट कि जो आगे पॉपुलेशन का इंक्रीज होगा जो इंक्लाइन होगा वो किस पे मैटर करेगा वो इसी पे स्पेसिफिकली मैटर करता है.
समझ आया पॉइंट? राइट, ऑन दैट ग्राउंड वी डिफाइन दैट इट विल फॉलो दिस कंडीशन, उस ग्राउंड पे हमें कहते हैं कि कंडीशन को फॉलो करेगा. राइट, क्लियर विद दिस? राइट, so that's why we state about it. Right, now yes, any other question to anyone till the point populations concept we have done in the previous session? Right, वहां तक कोई और डाउट, कोई स्पेसिफिक पॉइंट? Difference between biome and biosphere, selection model, and this. Okay, just wait. Let me share the screen first of all. Okay, just wait, guys. Okay, screen is visible to everyone. Screen proper दिख रहा है. चलो, अब आते हैं हम यहाँ पर with your all your doubts. Right, so first of all, right, we talk about biome and biosphere. Biome is being the one जो ecosystem के club, that is different communities, उनके interactions at a very larger area पे आपने club कर दिया. Example लेके चलते हैं, let's suppose desert is a biome, right? If I will say another one which is defined as आपका कि desert हमारे पास biome हो गया, tropical rainforest हमारे पास biome हो गया, right? तो grassland हमारे पास biome हो गया, but इन सबका अगर हम एक collective unit बना दें, right? तो that collective of all of them will forms the biosphere. Biosphere means all the biomes together. That's a complete, इस earth के ऊपर जितने भी organisms present है उसको सबको मिला के मैं biosphere कहूँगी. तो biosphere is the most complex unit which is being present. Right, that's why it is called the most complex unit जो हम इसे define करते हैं. Right, yes, niche वाला point. Okay, niche पे आती हूँ. चलो मैं अभी वो organism start ही करूँगी. Yes, biosphere is a complex is the biome and the most complex with that is called as the biosphere. अगर ध्यान हो तो यहाँ मैंने लिखा भी था पॉइंट ये वाला. जस्ट वेट, द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूनिट इज द बायोस्फीयर. राइट, ठीक है. नाउ उसी के बाद नेक्स्ट वन सिलेक्शन मॉडल. ठीक है, सिलेक्शन मॉडल पे आती हूँ. नीश वाला पॉइंट अभी समझाती हूँ. राइट, यस, बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट बायोम. राइट सान्या, राइट. ओके गाइस, सो अब हमने देखो यहाँ पर मैं एक एक करके सबसे पहले पॉइंट क्लियर करूँ. पॉपुलेशन जब हमने स्टार्ट किया तो हमने कहा था पॉपुलेशन इज बीइंग द वन व्हिच इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू द सिंगल स्पीशीज. एक ही स्पीशीज के सारे इंडिविजुअल्स की मैंने ग्रुपिंग कर दी है एक पर्टिकुलर एरिया पे, तो दैट आई डिफाइन एज अ पॉपुलेशन. राइट, जिसमें मैंने कहा कि बहुत सारे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स हम डील करते हैं. राइट, फॉर एग्जांपल इफ आई विल टॉक अबाउट द एज ग्रुप, फॉर एग्जांपल आई विल टॉक अबाउट द बर्थ रेट एंड डेथ रेट. राइट, तो जब हमने बर्थ रेट डेथ रेट का, तो पर कैपिटा बर्थ का मतलब पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के बेसिस पे, बायोमास के बेसिस पे, दैट्स अ पर कैपिटा मास. राइट, जिससे आप लेके चलते हो, मींस इनिशियल नंबर के बेसिस पे उसे आप पर कैपिटा का नाम देते हो. तो जब हम बर्थ रेट भी की डेफिनेशन भी लिखते हैं तो एनसीईआरटी में अगर आपने पढ़ा होगा, राइट, तो इट हैज बीन गिवन अबाउट इट कि दैट इज द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर कैपिटा बर्थ ऑफ दैट पॉपुलेशन. राइट अंकुर, तो पर कैपिटा का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल साइज कितना है उसका, उसको हम पर कैपिटा डिफाइन करते हैं. राइट, वहाँ हम डिफाइन करते हैं. उसी के बाद हमने कहा नेक्स्ट वन इज बीइंग द एज पिरामिड्स जो हमने डिफाइन किए थे. राइट, एज पिरामिड्स को हमने डिफाइन किया था इन द थ्री मैनर्स, वेट following triangular mid model or the bell shape model or the urn shape model. Right, फिर हमने कहा sex ratio is defining the population health and the expansion rate को हमारे पास define करता है. Right, वहीं हमने कहा था, वापस से एक लाइन फिर से explain करती हूँ क्योंकि पॉइंट दोबारा से पूछा. राइट, इन द कंडीशन whenever we say बच्चे, राइट, जब हम सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो हम ये जरूर डिफाइन करते हैं कि इट्स बीइंग द वन जहाँ पर आप कहते हो असेंबलेज कर रहे हो पॉपुलेशन की. यू विल टॉक अबाउट कि हाँ आपकी ये पर्टिकुलर ग्रुपिंग है पॉपुलेशन के अंदर, तो पॉपुलेशन में ये ग्रुपिंग आपने इस एजेस के हिसाब से की है. राइट, जब आपने एजेस के हिसाब से पूरी ग्रुपिंग की है तो आपने ये डिफाइन किया कि इन दैट अकाउंट कि हमारे पास मेल और फीमेल का अबंडेंस कितना है, क्या प्रपोर्शन है. तो वही मेल और फीमेल के अबंडेंस और प्रपोर्शन के बेसिस पे ही हम यहाँ पर उसको, राइट, एज अ सिनेरियो उसको हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास दोनों का इक्यू प्रपोर्शन होना जरूरी है. राइट, ताकि एक्चुअल में आगे की पॉपुलेशन इंक्रीज हो सके. अगर हम कहा कि मेल ज्यादा कर दिया फीमेल कम हो गई तो भी इक्यू प्रपोर्शन आप मेंटेन नहीं कर सकते, आगे की पॉपुलेशन को मेंटेन नहीं कर सकते. सिमिलरली वाइस वर्सा भी आप मेंटेन नहीं कर सकते. राइट, दैट्स व्हाई यू विल डिफाइन इट. समझ आया पॉइंट यहाँ तक बच्चे? राइट, उसी के साथ साथ फिर हमने यहाँ पर डिफाइन किया अनदर वन. राइट, व्हेन वी विल टॉक अबाउट द पॉपुलेशन डेंसिटी, जब हमने पॉपुलेशन डेंसिटी को डिफाइन किया तो हमने कहा पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब, राइट, कि एक एरिया में कितनी कौन सी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा डेंसर है, कौन सी पॉपुलेशन है जो कम डेंसर है. राइट, उस बेसिस पे हमने डिफाइन किया पॉपुलेशन डेंसिटी, दैट्स अ पर यूनिट एरिया, आप उसको स्टेट कर रहे हो. राइट, उसी के साथ साथ आपने यहाँ पर कहा कि अनदर वन कि आप कैसे इसको निकाल सकते हो एब्सोल्यूट डेंसिटी, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल बायोमास के थ्रू या फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट या फिर पैग मार्क्स वगैरह को डिटरमाइन करके. राइट, यू कैन गो फॉर
फॉर इट। उसके साथ साथ आपने कहा यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ, राइट। पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन, दैट्स बर्थ रेट, इमिग्रेशन, डेथ रेट एंड ई माइग्रेशन, राइट। जहाँ हमने कहा अगर बर्थ रेट और इमिग्रेशन ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर पॉपुलेशन जो है हमारे पास एक्सपैंड करेगी, लेकिन जहाँ डेथ रेट और ई माइग्रेशन ज्यादा होगा वहाँ पॉपुलेशन हमारे पास डिक्लाइन करेगी, right? On that ground we will define this particular thing, that is nt plus 1 equals to nt plus b plus i minus d plus e, जैसे हम डिफाइन करते हैं। फिर हमने कहा था ग्रोथ मॉडल्स हमने दो जोन्स में बेटा डिफाइन किए, वन एज द अनप्रेडिक्टेड एनवायरनमेंट एंड अनदर एज द प्रेडिक्टेड एनवायरनमेंट। अब हमारे पास ये जो अनप्रेडिक्टेड और प्रेडिक्टेड एनवायरनमेंट है, इसका कहने का मतलब जिस एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज और स्पेस अनलिमिटेड है, राइट, जिस एनवायरनमेंट के अंदर हमें प्रॉपर्ली इसकी कंडीशंस नहीं पता है, राइट, वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत अच्छे से एक्सपैंड कर सकती है, उसे आप डिफाइन करोगे एज एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, राइट। तो यू विल से एन नॉट और एन टी, जिसे हमने कहा डी एन बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एन, वेयर डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू आर एन के इक्वल हमने यहाँ पर करा, राइट। और आर हमारे पास हो गया बायोटिक पोटेंशियल, याद आ रहा है सबको? बायोटिक पोटेंशियल हमने क्या कहा था, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, राइट, कि इसका मतलब हमारे पास कितना एक्चुअल में उसका इंक्रीज हो रहा है, दैट इज द बर्थ रेट टोटल माइनस द डेथ रेट, राइट, ताकि हमें पॉपुलेशन में टोटल राइज टोटल इंक्रीज हमें पता चल जाए, उसके बेसिस पे हम ये डिफाइन करते हैं, राइट। हमारे पास जे शेप कर्व आया था, तो हमने कहा था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज बेसिकली बीइंग फॉर द वन, जो आपका एक्चुअली एक ऑर्गेनिज्म का इन अ पीरियड ऑफ अ टाइम, इन अ कंप्लीट लाइफ साइकिल, एक पीरियड ऑफ टाइम पे फेज आएगी, रादर कंप्लीट लाइफ साइकिल के अंदर अगर हम देखें तो उसके पास फॉलो क्या होगा, लॉजिस्टिक ग्रोथ, क्योंकि रियलिस्टिक मॉडल वही है हमारे पास जो एक्चुअली लिमिटेड स्पेस लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स के साथ प्रेडिक्ट किया जाता है, एक प्रेडिक्टेड एनवायरनमेंट है जिसमें हम दो पैरामीटर्स देखते हैं मेनली, वन इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी एंड अनदर वन व्हिच इज बीइंग डिफाइंड एज दी, जो आपने नेक्स्ट पैरामीटर डिफाइन किया इसके अंदर, राइट, व्हिच इज कॉल्ड एज द एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। सो कैरिंग कैपेसिटी हमारे पास क्या थी कि इतनी मैक्सिमम लिमिट है कि इतने इंडिविजुअल्स को हार्बर कर सकते हैं। एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस क्या हमारे पास, वो सारे एनवायरमेंटल फैक्टर जो पॉपुलेशन ग्रोथ को लिमिट कर सकते हैं, राइट, व्हिच कैन लिमिट द पॉपुलेशन, तो उसको आप एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस का नाम देते हो। तो यू कैन सिंपली से दैट द डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू आर एन इंटू के माइनस एन बाई के, राइट, जो आपने एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस डिफाइन किया, और एक्चुअल में कर्व आपका एस शेप्ड कर्व ही आया हमारे पास, राइट, जिसकी वजह से हमने स्टेट किया। अब हमने ये पॉपुलेशन मॉडल्स जो बेटा पढ़े, ग्रोथ मॉडल्स, राइट, जे शेप कर्व में ग्राफ कांस्टेंट क्यों नहीं, बेटा जे शेप अगर ग्राफ कांस्टेंट हो जाता बच्चा साने तो वो हमारे पास लॉजिस्टिक हो जाता ना, राइट। व्हेनेवर आई से बेटा कि एक पॉपुलेशन मेरे पास ग्रो कर रही है और जब वो अनलिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ग्रो करती है, तो हमने कहा यहाँ पर कि उस अनलिमिटेड रिसोर्सेज में तब तक वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होते हैं, टू रेज़ पावर एन के नंबर के हिसाब से इंक्रीज होते हैं, जब उनकी बहुत ज्यादा डिमांड्स पूरी हो रही है और प्रॉपर्ली वो ग्रो करते चले जा रहे हैं। अब एक पॉइंट ऐसा होगा जब वो प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाएंगे, उनका डिक्लाइन शुरू होने लग जाएगा, और जैसे ही डिक्लाइन शुरू होगा वैसे एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा, राइट। अगर स्टेशनरी फेज पे गया तो वो एक लिमिट हो गई कि इतने तक जाना, इससे बियॉन्ड नहीं जाना, लेकिन हम उस एनवायरनमेंट में तो कोई लिमिट लगा ही नहीं रहे हैं, राइट। दैट्स व्हाई वी विल से दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट, इसी वजह से हम कहते हैं, राइट। तो एक कंसेप्ट ये याद रखना बच्चे, हमने ये कहा कि इसके अंदर कि आपका एक ऑर्गेनिज्म, राइट, अगर थोड़ा सा ध्यान हो तो प्लांट के अंदर हमने अरिथमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिक ग्रोथ पढ़ी थी, उससे रिलेट करती हूँ तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, राइट। ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या थी, जब आपका एम्ब्रियो बन रहा होता है इन द स्टार्टिंग ऑफ द ग्लोबुलर एम्ब्रियो की कंडीशन में ज्योमेट्रिक ग्रोथ हो रही होती है, और जैसे ही एम्ब्रियो की डेवलपमेंट डिफरेंशिएशन शुरू होता है, राइट, वैसे ही आप कौन सी ग्रोथ शुरू कर देते हो, यू विल स्टार्ट द अरिथमेटिक ग्रोथ, राइट। तो पहले आपने ज्योमेट्रिक ग्रोथ किया और फिर आपने कौन सी ग्रोथ स्टार्ट कर दी, अरिथमेटिक ग्रोथ। तो अब उस ग्रोथ के चार्ट को अगर हम देखें तो हाउ दैट ग्रोथ चार्ट विल कंटिन्यू, हाउ दैट कंप्लीट फेज विल कंटिन्यू, राइट। तो फेज को हम कैसे कंटिन्यू करेंगे, तो उसके बेसिस पे हमने क्या डिफाइन किया, राइट। वी विल से नाउ इट विल बी शोइंग द थिंग कि आप सबसे पहले सेम उस तरीके से पहले आप अनलिमिटेड रिसोर्सेज में ग्रो करा रहे थे, जब आपने डिफरेंशिएशन करना शुरू किया, आपने लिमिट कर दिया ना रिसोर्सेज, तो ऑटोमेटिकली वो किस में मूव कर गया हमारे पास, राइट, इन दी लॉजिस्टिक ग्रोथ। अगर हम यहाँ पर बच्चे कर्व देखें, लेट अस सपोज सी द कर्व, क्या इसी कर्व के अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व मिल रहा है हमें? Yes guys, tell me, क्या इसी ग्रोथ के अंदर are we able to find out with the exponential growth curve? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व हमें फाइंड हो रहा है, राइट। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व कौन सा मिल रहा है मुझे, लॉग फेज का मिल रहा है ना, राइट। इसका मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म लॉजिस्टिक ग्रोथ कर रहा है वो लॉग फेज में तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ही कर रहा है, राइट, लेकिन एक्चुअल में वो स्टेबलाइज होगा क्योंकि उसके एक मैक्सिमम लिमिट है, उसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकता, इसी वजह से वो स्टेबलाइज हो जाता है, वो स्टेशनरी फेज में चला जाता है, राइट। अब समझ आ गया सबको पॉइंट, राइट। दैट्स व्हाई लॉजिस्टिक ग्रोथ इज बीइंग the growth of the complete organism, while the exponential growth is a part of the growth of the organism. उस organism की growth का एक specific part है, right? Clear है यहाँ तक का point, right? अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, उसी के बाद नेक्स्ट वन डार्विन फिटनेस मॉडल, राइट। अगर मैंने बच्चे डार्विन फिटनेस मॉडल की बात की तो मैंने कहा था ऑर्गेनिज्म और उसकी ग्रोथ को हम बेसिकली पढ़ते दो पैरामीटर के बेसिस पे, वन इज कॉल्ड एज अ ब्रीडिंग हैबिट एंड अनदर इज कॉल्ड एज अ साइज एंड नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग,
ब्रीडिंग हैबिट का मतलब कि हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे, दे आर द फ्रीक्वेंट ब्रीडर्स और दे आर द सीजनल ब्रीडर्स, राइट, किस तरीके से हम उन्हें डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमारे पास दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कभी कभी ब्रीडिंग शो करते हैं और जो फ्रीक्वेंटली ब्रीडिंग शो करते हैं, उसके बेसिस में उन्हें कैटेगराइज करते हैं, राइट। फिर हमने कहा साइज एंड नंबर ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स, राइट, कि हमारे पास कितना जो ऑर्गेनिज्म बनाए ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे वो ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस होंगे या फिर आपके कम नंबर में प्रोड्यूस होंगे। अब हम आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन समझेंगे फिर से एक बार, तो बहुत ध्यान से इसको समझना एंड यू आर गोइंग टू आंसर मी, ठीक है। अब जो मैं कंडीशंस के हिसाब से मुझे आंसर चाहिए सबका, ठीक है, ताकि मुझे वो कंडीशन क्लियर हो जाए, राइट। वेट रजुल वेट, राइट, पहले एक बार आर सिलेक्शन के सिलेक्शन पे आ जाऊं, राइट। नाउ लेट अस सपोज बच्चा एक ऑर्गेनिज्म है, राइट, जिसको आपने ग्रो कराया है कैसे, अनप्रेडिक्टेड एनवायरनमेंट में, जहां पर अनलिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड शेल्टर स्पेस सब कुछ अवेलेबल है, राइट। वो ऑर्गेनिज्म वहां पर ग्रो कर रहे हैं, राइट। अगर उसको अनलिमिटेड रिसोर्सेज मिल रहे हैं तो क्या वो ऑर्गेनिज्म का बर्थ रेट ज्यादा होगा या कम होगा? हैज द ऑर्गेनिज्म बर्थ रेट हाई और लो? क्विकली। हाई मैम। हाई, वेरी मैम, राइट, बिल्कुल। अगर हमारे पास ऑर्गेनिज्म का बर्थ रेट हाई है, इसका मतलब वो ज्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर रहा है। इफ इट इज प्रोड्यूसिंग मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, ज्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस ज्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए उसका जनरेशन टाइम कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? जनरेशन टाइम शुड बी लेस और हाई, कम होना चाहिए, बिल्कुल, शॉर्ट होना चाहिए। तो हमने कहा जनरेशन टाइम हमारे पास शॉर्टर होना चाहिए। अगर जनरेशन टाइम कम है, इसका मतलब वो कम टाइम में ही प्रॉपर ग्रोथ करके डेवलपमेंट शो कर देगा। इसका मतलब उसकी बॉडी में डिफरेंशिएशन, उसकी बॉडी में कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी। कम होगी, राइट। तो हमें 2 पॉइंट यहाँ से पता चल गया कि हाई बर्थ रेट होगा, कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, बॉडी का साइज छोटा होगा, स्मॉल बॉडी साइज होगा तभी कॉम्प्लेक्सिटी कम है, राइट। उसी के साथ साथ हमने कहा कि इट इज बीइंग द वन जिसके पास हमारे पास बॉडी साइज छोटा हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई, उसी के साथ हाई बर्थ रेट हो गया, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल भी हमने बढ़ा दिया और जनरेशन टाइम भी हमने कम कर दिया, जो ज्यादा नंबर में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है। और ऑफस्प्रिंग भी कैसे साइज के प्रोड्यूस होंगे, छोटे साइज के प्रोड्यूस होंगे। इसका मतलब वो ऑर्गेनिज्म एक अनप्रेडिक्टेड जोन में ग्रो कर रहा है। तो अब वो ऑर्गेनिज्म किसी कंट्रोल के अंडर ग्रो कर रहा है या अपने कंप्लीट बायोटिक पोटेंशियल के हिसाब से ग्रो कर रहा है? इज इट ग्रोइंग अंडर समवॉट कंट्रोल और ग्रोइंग अंडर द कंप्लीट बायोटिक पोटेंशियल इन्फ्लुएंस? बायोटिक पोटेंशियल। बायोटिक पोटेंशियल, इसका मतलब उसको कोई भी कंट्रोल करने वाला नहीं है, बिल्कुल। तो अब ऐसे एक मॉडल, जो ऑर्गेनिज्म इस मॉडल में सेलेक्ट होंगे, वो कौन सा मॉडल हो जाएगा, आर सिलेक्शन या के सिलेक्शन? हमारे पास के इज अ कैरिंग कैपेसिटी, वो तो है ही नहीं ना, राइट। तो हम स्मॉल सिलेक्शन मॉडल को क्या कह देंगे, आर सिलेक्शन, वेरी गुड, राइट। तो वी डिफाइन एज आर सिलेक्शन, आर स्मॉल मैन चाहिए बेटा, ठीक है, राइट। उसी के बाद अगर मान लो इसी की रिवर्स कंडीशन लेते हो, एक ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी एक प्रेडिक्टेड एनवायरनमेंट में ग्रो करता है, जो एनवायरनमेंट आपका फिक्स है कि इसमें इतने न्यूट्रिएंट्स है, इतने स्पेस है, इतनी इसकी लिमिट है, राइट, ये सब कुछ आपने फिक्स कर रखा है। तो ऑन दैट फिक्सेटिव ग्राउंड्स के ऊपर अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज होती है, राइट, तो उसके बेसिस पे हम क्या डिफाइन करेंगे, राइट। हम कहेंगे ठीक है, अब हमारे पास अगर फिक्स हो गया तो ऑर्गेनिज्म जो ग्रो करेगा वो एक्चुअली बर्थ रेट उसका अपना ज्यादा रखेगा या कम रखेगा? कम रखेगा, राइट। तो बर्थ रेट उसने अपना कम कर दिया। जब उसने अपना बर्थ रेट कम कर दिया तो उसी के साथ साथ उसने कहा यहाँ पर, राइट, कि अब अगर ऑर्गेनिजम्स बनाने हैं तो वो ज्यादा जनरेशन टाइम लेके बनाओ। अगर ज्यादा जनरेशन टाइम लेके बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा, उसका बॉडी साइज भी ज्यादा, राइट। जहां उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा, जहां उसका बॉडी साइज ज्यादा, वहीं पर हम कह देंगे कि भाई ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म हो गया हमारे पास, राइट, जो ग्रो कर रहा है उन कंडीशंस के अंदर जहां पर वो मैक्सिमली एक्सपैंड कर सकता है अपने आप को, राइट। तो उन कंडीशंस में ग्रो कर रहा है जहां पर ये प्रॉपरली पूरी तरीके से एक्सपैंड करेगा, लेकिन लार्ज साइज के स्मॉल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बनाएगा, राइट। तो अब लार्ज साइज के स्मॉल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बना रहा है, इसका मतलब ये कौन सा सिलेक्शन को फॉलो करेगा, इट इज फॉलोइंग द के सिलेक्शन। क्योंकि अगर के सिलेक्शन फॉलो करेगा बेटा तो 2 पैरामीटर्स पे फॉलो कर रहा है कि इसके ऊपर सिर्फ बायोटिक पोटेंशियल इसका कंट्रोल नहीं कर रहा, इसको कंट्रोल करने वाला कैरिंग कैपेसिटी भी है। तो 2 थिंग्स आर कोऑर्डिनेटिवली कंट्रोलिंग इट, दैट इज द कैरिंग कैपेसिटी एज वेल एज द बायोटिक पोटेंशियल, राइट। दोनों एक साथ से कंट्रोल हो रहे हैं। अब समझ आए यहां तक का पॉइंट? अब के सिलेक्शन और आर सिलेक्शन मॉडल क्लियर हो गया सबको अच्छे से, राइट। अच्छा, टेल मी गाइस, बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल फॉर, bacteria will follow which selection model? R selection. R selection में बिल्कुल। बैक्टीरिया क्यों R selection फॉलो करेगा? क्योंकि वो इनफ न्यूट्रिएंट में कम जनरेशन टाइम में ज्यादा नंबर बना सकते हैं। वही मुझे बताओ, एलिफेंट एंड ह्यूमन, एलिफेंट एंड ह्यूमन, के सिलेक्शन। के सिलेक्शन, वेरी गुड, राइट, दे आर गोइंग टू फॉलो द के सिलेक्शन। अब समझ आ गया सबको पॉइंट, राइट, अंडरस्टूड एवरीवन? सो दिस इज व्हाट दी, राइट अंशिका, क्लियर हुआ बच्चे? राइट, तो ये हमारे पास आर सिलेक्शन, के सिलेक्शन, राइट। अब हमारे पास पॉपुलेशन के टॉपिक से कोई डाउट किसी को? राइट, हाँ, हैबिटेट एंड इकोलॉजिकल नीश पे भी आ रही हूँ बेटा।
राइट नाउ मूविंग टू दिस आर सिलेक्शन के सिलेक्शन मॉडल. अच्छा ऊपर एक डीम पूछा था किसी ने मुझसे. राइट डीम इज बीइंग द वन जो लोकल पॉपुलेशन एट अ स्मॉलर एरिया. एक स्मॉल एरिया पे जो लोकल पॉपुलेशन है दैट इज कॉल्ड डीम. उसे हम डीम का नाम देते हैं. लाइक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो पॉपुलेशन है उसको आपने डीम का नाम दे दिया. वहीं पर टोटल दिल्ली की पॉपुलेशन को आपने मेटा पॉपुलेशन का नाम दे दिया और उसी में से जेनेटिकली स्टेबलाइज्ड पॉपुलेशन को आपने इकोटाइप का नाम दे दिया. Now talking about the two terms that is habitat and ecological niche. अब हम कहते हैं habitat क्या होता है हमारे पास. So habitat we will say it's being one of the place where organism is maximally surviving at a higher rate. Right जहाँ पे वो maximum resources को utilize कर सकता है, अपनी maximum growth को show कर सकता है, जिस जगह पे वो actually रह रहा है. राइट तो एट अ पर्टिकुलर टाइम जिस जगह पे वो ऑर्गेनिज्म रहता है वो उसका हैबिटेट होता है. राइट दैट्स अ हैबिटेट. लेकिन वहीं पर उसका एक फंक्शनल उस हैबिटेट के अंदर उसका फंक्शनल जोन क्या है. व्हाट्स अ फंक्शनल जोन. तो इकोलॉजिकल नीश इज नॉट एक्चुअली अ प्लेस. इट्स अ फंक्शनल जोन ऑफ दैट हैबिटेट व्हिच इज ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म. राइट इसका मतलब लेट्स सपोज मैंने कल लास्ट टाइम एक बताई थी आपको स्टेटमेंट. राइट कि हैबिटेट इज एन ऑर्गेनिज्म एड्रेस. राइट while ecological niche is the functional zone in that address. राइट तो आपके घर का एड्रेस योर परमानेंट रेजिडेंस बिकम योर हैबिटेट right at a point of time while the role you are playing in your home is basically being your ecological niche. राइट विच इज गोइंग टू गेट चेंज जो बार बार चेंज होता रहेगा. राइट किसके अकॉर्डिंगली जिसके अकॉर्डिंगली आप फंक्शन कर रहे हो. राइट तो यू आर बीइंग बिहेविंग एज अ ब्रदर और अ सिस्टर. राइट तो योर फंक्शनल रोल चेंजेस योर इकोलॉजिकल नीश चेंजेस बट एट द सेम टाइम व्हेन यू आर बीइंग वर्किंग एज अ राइट चाइल्ड अगेन योर फंक्शनल जोन चेंजेस स्टिल द हैबिटेट रिमेन सेम. तो इन अ हैबिटेट एक ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक इकोलॉजिकल नीश होगा एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम पे मे बी वो चेंज कर सकता है लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एक्चुअली में सेम ही रहेगा, उसी पर्टिकुलर नीश को ऑक्यूपाई करेगा. राइट तो अब हमने यहाँ पर कहा कि अगर मैंने कहा लेट्स सपोज ये हैबिटेट है मेरे पास, ये दो मैंने बैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स लिए. दोनों बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं बेटा. दोनों एक ही हैबिटेट में एक साथ रह रहे हैं बट वन इज बीइंग वर्किंग एज अ डिकम्पोजर अनदर इज बीइंग वर्किंग एज द राइट डिसीज कॉजिंग पैथोजन. इसका मतलब दोनों के दोनों जो है मेरे पास उनका फंक्शनल जॉब जो है वो अलग अलग है. राइट लेकिन उसी के साथ साथ हमने कहा कि दोनों का जो आपका सर्वाइवल प्लेस है वो एक है. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करती हूँ तो उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की है, मैनेजर की पोस्ट भी है. राइट बहुत सारी अदर पोस्ट भी प्रेजेंट है. राइट जिसके बेसिस पे अगर मैं इसको डिफाइन करना शुरू करूं तो आई कैन सिंपली से दैट राइट कि हम यहाँ पर सिंपली इसको डिफाइन कर देते हैं कि अगर हम इसमें पूरी की पूरी स्टेज डिफाइन करें. राइट तो हमने कहा उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास ऑर्गेनिजम्स के रोल हमारे पास वहाँ जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन काम करने वाला रोल है तो आप कहोगे एक भैया बंदा मैनेजर की तरह काम कर रहा है, वहीं एक बंदा असिस्टेंट की तरह काम कर रहा है, अनदर वन इज वर्किंग एज सिंपल एम्प्लॉय, अनदर वर्क इज वर्किंग एज अ हाउसकीपिंग पर्सन ऑल्सो. राइट तो इस तरीके से भी काम हो रहा है. राइट तो अब हमारे पास ये जो कंसेप्ट आता है दिस इज बीइंग द वन व्हिच इज डिफाइंड एज अ कंप्लीट कंडीशन. जो आपने डिफाइन किया कि ये उसके अलग अलग वहां पर लेवल्स है, ग्रेडेशंस है और वो उसके क्या ग्रेडेशंस बने दैट बिकम द नीश. सिमिलरली एक पूरे एनवायरनमेंट के अंदर एक हैबिटेट के अंदर आपने मेन तीन लेवल बनाए कि तीन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं. राइट वन ग्रुप इज वर्किंग एज अ प्रोड्यूसर, अनदर ग्रुप इज वर्किंग एज अ प्राइमरी कंज्यूमर, अनदर ग्रुप इज वर्किंग एज सेकेंडरी कंज्यूमर. तो यू विल से तीनों ग्रुप्स जो है हैबिटेट सेम ऑक्यूपाई कर रहे हैं. राइट लेकिन तीनों के रोल अलग अलग है बिकॉज तीनों के इकोलॉजिकल नीश अलग अलग है. राइट तो इसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पर एक टर्म लिखी थी. राइट कि एन ऑर्गेनिज्म कैन हैव मल्टीपल नीश इन द डिफरेंट हैबिटेट but single specific niche in the one habitat. एक हैबिटेट में उसका एक सिंगल स्पेसिफिक नीश होगा जहां पर वो एक पर्टिकुलर रोल को प्ले कर रहा होगा. राइट गॉट दिस पॉइंट एवरीवन? समझ आ गया अब ये पॉइंट अच्छे से? राइट लेकिन भाई दो ऑर्गेनिज्म जब सेम नीश को ऑक्यूपाई करते हैं डिफरेंट हैबिटेट के अंदर तो उन्हें आप क्या कहते हो? इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस. राइट यू विल डिफाइन देम एज इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस. यहां तक का पॉइंट सबको क्लियर? यस गाइस ईशान क्लियर हो गया बच्चे? राइट तो इकोलॉजिकल नीश कंप्लीटेड. चलो राइट आगे बढ़ जाए इसी के अंदर. नाउ मूविंग टू दी फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ. राइट अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं राइट जो एक्चुअली में पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं? तो वी विल से फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ. राइट और कौन कौन से फैक्टर्स हैं हमारे पास? दैट आर दी एबायोटिक फैक्टर्स. बहुत ध्यान से समझने. Relative factors, simple से factors हैं. Abiotic factors, that is the environmental factors, which are going to right affect the complete process of the right population growth. Population growth के पूरे process को affect करेंगे. तो अब हम वही देखेंगे कि कैसे affect करेंगे, how they are going to work, how they are going to affect. Let's start with that. Right तो अब उसी के साथ अगर start करते हैं तो सबसे पहला factor हमारे पास आता है. That's being the one defined as the temperature.
right? So temperature is the first factor and the most relevant factor. It is called as the most relevant factor, right? Most relevant factor affecting population growth. राइट पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट करने वाला राइट सबसे रेलिवेंट फैक्टर है ये हमारे पास और एक ऐसा फैक्टर जो एक्चुअल में एक सबसे मेन रोल प्ले कर रहा है राइट व्हाई वी विल से इट्स अ मोस्ट रेलिवेंट फैक्टर इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द फर्स्ट मेजर फैक्टर वी विल से इट्स द फर्स्ट मेजर फैक्टर sorry population organism growth and factors affecting organism growth. Now in this complete अब अगर ये डिफाइन करते हैं इसके अंदर जहां पर भी बीच में एक बार स्क्रीन हैंग हो जाए ना बेटा टेल मी राइट क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है तो उसी टाइम मुझे बता देना राइट तो हमने कहा मोस्ट रिलेवेंट फैक्टर अफेक्टिंग द ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड द फर्स्ट मेजर फैक्टर कंट्रोलिंग इंडिविजुअल ग्रोथ को अब ये कैसे कंट्रोल करते हैं दे कंट्रोल द इंडिविजुअल ग्रोथ बाय द टू थिंग्स सबसे पहले controlling or regulating enzyme kinetics and then second regulating basal metabolism right basal metabolism को regulate करेंगे और एंजाइम काइनेटिक्स को कंट्रोल और रेगुलेट करेंगे on that ground they are being working that's why we will define that factor as the first major factor which is controlling the individual growth right तो एंजाइम काइनेटिक्स और बेसल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं right अब हम अगर टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं बेटा हमने कहा ये दो चीजें ये कर रहे हैं इसी वजह से हमने इसको सबसे रेलिवेंट फैक्टर कहा है और हम ये जानते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म एवरी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज राइट तो वी विल से एवरी ऑर्गेनिज्म survive at a particular temperature range because of which they are categorized into on the basis of tolerance ability टॉलरेंस एबिलिटी के बेसिस पे आपने इसे दो में डिवाइड कर लिया बहुत ध्यान से समझना राइट क्या क्या है हमारे पास कैटेगरी नंबर फर्स्ट एंड द सेकेंड वन नंबर फर्स्ट आर द eurythermal organism and we state them as the eurytherms. Another is the stenothermal organisms and we name them as the stenotherms. Right, अब ये दोनों members हमारे पास क्या हैं? Right, so let's talk about this. Whenever we say about eurythermal का मतलब they are able to tolerate temperature fluctuations and can maintain their constant internal temperature.
अपना कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, मींस कैन परफॉर्म थर्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, राइट, बट they are not able to tolerate different environmental or temperature fluctuations. ये tolerate नहीं कर पाते, right, and cannot maintain their constant internal temperature, right. Based on this, eurythermals have or show widespread distribution. Is it fine everyone? हर जगह मिलेंगे, widespread distribution होगा इनका, but they are limited to specific zone with respect to distribution. Distribution के हिसाब से एक specific zone पे limited है, right. तो on that ground हमने ये दो organisms बनाए, eurythermal and stenothermal. Now tell me, are they looking somewhat similar to the cold-blooded or warm-blooded animals? Yes guys. Can I regard them like this? सोचो थोड़ा सा. Yes, good. Right, तो we can regard them ना, हम ये कह सकते हैं ना कि they are the members which are looking like this, right, कि हमारे पास या तो ये cold blooded group में जाएंगे या warm blooded group में जाएंगे, तो उसे हमने क्या रख दिया, eurythermals and stenothermal organisms. याद रहेगा ये point सबको अच्छे से, right, completed यहाँ तक का point, right. Now next one, temperature के basis पे ही, based on the survival in different zones with respect to temperature, organisms can be studied as. इन्हें हम अब कैसे पढ़ते हैं वो देखना. अब अगर मैं zones की बात करूं बेटा, तो tell me, if I move from equator to pole, do the population density, organism density, decreases or increases? If I will move from tropical to decreases, right, right. तो अब हमने कहा है यहाँ पर, right, अब वही ग्राफ देखना है इसके अंदर. Now I'll say over here, right, एक सेकेंड मंशिका, मैं ग्राफ एक बार कंप्लीट कर लूं, देन आई विल वेट फॉर 30 सेकेंड्स. तब तक मैं एक बार रिकैप कराऊंगी टॉपिक का, तब आप नोट कर लेना जो रह गया बच्चा, ठीक है, राइट. अब मैंने कहा बच्चे यहाँ पर मेरे पास 4 जोन्स आए और 4 जोन्स के हिसाब से मैंने पढ़ा. दिस इज द ट्रॉपिकल जोन, दिस इज द सब ट्रॉपिकल जोन, this is the temperate zone, and this is the Arctic zone, or we can say tundra zone, right. And this is explaining that we are moving from high temperature to low temperature, right guys? Right. And this curve is explaining about population, because it is belonging to single species, I can write organism density. इसकी density की हम बात कर रहे हैं. Along with this, when I move from this,
एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बेटा, मैम वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट किया है? ये एक्सेस कोई नहीं है बेटा, मैं वही बताने वाली हूँ, ये कोई ग्राफ नहीं है, राइट। इसको भी मैं समझाती हूँ, एक मिनट नोट डाउन करो एक बार, फिर मैं समझाती हूँ इसको। ये क्या रिप्रेजेंटेशन है? ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड टुंड्रा। नाउ सी एवरीवन, हम ऐसे सोशल साइंस में पढ़ते थे, ज्योग्राफी के अंदर लैटिट्यूड अल्टीट्यूड के बारे में पढ़ा हुआ ना सबने, राइट। अब थोड़ा सा बस वही याद रखना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वगैरह, राइट। सो वी आर मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोल along the transverse axis. We are moving from equator to pole along the longitudinal axis. Fine, right? हम इस तरीके से जा रहे हैं, right? जिसको हमने डिफाइन किया है। अब यहाँ पर जो स्टेट किया है इसके अंदर, right? In this category, right? तो अब मैं वही आपको पहले समझाऊंगी, पहले ये वाला समझाती हूँ ताकि इसमें कंफ्यूजन ना रहे। देखो, अब हमने क्या किया, ट्रांसवर्स एक्सिस के अराउंड आई एम मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, मैं इक्वेटर टू पोल गई हूँ, राइट। उस जोन के अंदर अब मुझे ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना है। तो ट्रॉपिकल जोन में अगर आप देखोगे तो ट्रॉपिकल जोन में रहने वाले ऑर्गेनिज्म को हम नाम देते हैं मेगाथर्म्स। व्हाट वी नेम दिस ग्रुप एज दी मेगाथर्म्स। इसको मैंने मेगाथर्म्स का मतलब जो हायर टेम्परेचर रेंज पे रह सकता है। फिर उसके बाद अगर मैंने सब ट्रॉपिकल जोन की बात की तो सब ट्रॉपिकल जोन इज बीइंग द वन जहां पर मेरे पास ऑर्गेनिज्म उससे थोड़े कम टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड मीजोथर्म्स। टेम्परेट पे मैं आई और कम टेम्परेचर हो गया मेरे पास, आई कैन नेम देम एज माइक्रोथर्म्स। एंड फाइनली जब मैं आर्टिक पे आई तो आर्टिक पे आने के बाद मैंने ऑर्गेनिजम्स को नाम दिया हेकिस्टोथर्म्स। So I'll say with respect to the high temperature to low temperature, right, organism density is going to decline. वो decline होगा, population density decline हो रही है, जहां पर मैंने 4 groupings बना दी, right, जो higher temperature पे survive कर रहे हैं उनको हमने नाम दे दिया मेगाथर्म, जो लीस्ट टेम्परेचर पे सर्वाइव कर रहे हैं उनको हमने नाम दे दिया हेकिस्टोथर्म्स, और जो इंटरमीडिएट है वो मीजोथर्म्स और माइक्रोथर्म्स। और ये मैं कब पढ़ रही हूँ, जब मैं इक्वेटर टू पोल जा रही हूँ ऑन दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, राइट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बेसिस पे। समझ आया सबको पॉइंट, राइट। सो ऑन दैट बेसिस वी आर गोइंग टू डिफाइन इट एज द मेगाथर्म्स, मीजोथर्म्स, माइक्रोथर्म्स एंड हेकिस्टोथर्म्स हमने कैटेगराइज किया। गॉट दिस पॉइंट एवरीवन, राइट। अब अगर मैंने कहा बच्चे इसी चीज को, right, if I will talk about with respect to, okay, is the screen visible to everyone? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay, it's not visible to me actually. Just wait, it's overlapping with the things. ग्राफ कंप्लीट करो एक बार। ओके फाइन, इज इट नाउ विजिबल? ठीक है। नहीं, अभी विजिबल होगी नहीं स्क्रीन, क्या ही प्रॉब्लम है बताइए। Okay, now it's visible case. Fine है? Yes, ma'am. चलो, Yes, ma'am. मुझे भी दिख गई है। Okay, everyone, so we will say over here, right, तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया कि हमारे पास ट्रॉपिकल से आर्टिक एरिया में हम गए तो हमें इस तरीके से पॉपुलेशन डेंसिटी मिली है, राइट। अब ये मैं थोड़ा ये वाली लाइन भी चेंज करती हूँ तब आपको ये ज्यादा अच्छे से कर दूँ। हम इसमें अलॉन्ग लैटिट्यूड गए थे। हाँ, नाउ सी एवरीवन, अब हमने कहा यहाँ पर कि अब हम इसको वर्टिकल एक्सिस के अराउंड पढ़ेंगे। तो व्हेन आई टॉक अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, तो वर्टिकल एक्सिस के अराउंड जब मैं गई, नाउ आई विल से दिस इज द ट्रॉपिकल जोन। ये मैंने इसलिए चेंज किया ताकि आपको अब कंफ्यूजन ना हो। सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट
and tundra zone. Tell me guys, अब ऐसे जाते हुए population density क्या हो रही है हमारे पास? Decrease. Very good. तो हमने कहा organism and population density go on decreasing when I'm moving from tropical to tundra area. जब हम ट्रॉपिकल से तुंद्रा एरिया पे गए तो हमारे पास ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो गई, हमारे पास डिक्लाइन हो गई. ऑन दैट अकाउंट वी विल से राइट वापस से, अब देखो ऑर्गेनिज्म को फिर से अगर मैं लिस्ट करूं तो यहाँ ऑर्गेनिज्म कौन से आ गए, ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर कौन से हो गए, डी. अब क्लियर हुआ पॉइंट? अंडरस्टूड एवरीवन? राइट. सो ऑन दैट अकाउंट वी कैन से दिस थिंग. इस तरीके से हम कहते हैं कि हमारे पास होता है कि ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और आर्टिक जोन के अंदर राइट तब हम इसको बेसिकली स्टेट करते हैं. राइट. क्लियर टिल हियर एवरीवन? अंडरस्टूड टिल दिस पॉइंट? राइट. कर्व बन गया सबका? Yes, ma'am. गुड. राइट. तो अब इसी के नीचे लिखो, नो मैम. बनाओ फटाफट से. सिंपल सा कर्व है. राइट. तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा मेगाथर्म्स टू हेकिस्टोथर्म्स अगर हम जाते हैं तो हमारे पास किस तरीके से अगर हम कहें पॉपुलेशन डेंसिटी राइट जा रही है तो हेकिस्टोथर्म के मेंबर ज्यादा होंगे या मेगाथर्म्स के मेंबर ज्यादा होंगे? Megatherms. मेगाथर्म्स. हेकिस्टोथर्म्स आर वेरी वेरी रेयर. राइट. आपको पता है जो हमारे पास माउंट एवरेस्ट की तरफ जो लोग जाते हैं उन्हें हम हेकिस्ट का नाम देते हैं. दे आर कॉल्ड हेकिस्ट. व्हाई? बिकॉज दे आर सर्वाइविंग इन दैट एरिया. उस एरिया में सर्वाइव करने जा रहे हैं जहां पर टेम्परेचर बहुत ही मिनिमम है. राइट. सो ऑन दैट अकाउंट वी जस्ट नेम दैट थिंग एंड उस तरीके से हम वो बेसिकली नेम इसमें डिफाइन करते हैं. राइट. समझ आया पॉइंट सबको अच्छे से? राइट. नाउ मूविंग टू दिस वन. राइट. अब अगर हम इसको बेसिकली बच्चे स्टेट करते हैं तो इसमें एक बार नीचे लिखो यहाँ पर मेगाथर्म्स के आगे डैश डाल के लिखो कि अभी ये मेरी स्क्रीन तो हैंग ही है. राइट. आप लिखो इसमें मेगाथर्म्स डैश डाल के survive in a zone with temperature more than 25 degrees Celsius. Survive in a zone with temperature more than 25 degrees Celsius. More than 25 degrees Celsius. Then second, mesotherms. Survive in temperature range. In between 20 to 35 degrees Celsius. Survive in temperature range in between 20 to 35 degrees Celsius. 20 to 35 degrees Celsius. Next, microtherms. Survive in temperature range below 25 degrees Celsius. Survive in below 25 degrees Celsius. Below 25 degrees Celsius. And hekistothers. Survive in temperature range. Ma'am, screen is not visible. I know, bacha. Wait. Survive in temperature range below 4 degrees Celsius. Below 4 degrees Celsius. 4 degrees Celsius. Fine till here? Right. So this is what we define as a complete, जो हमने इसको state किया है as a whole portion with this. Correct? मैम एक बार स्क्रॉल कर दो. एक सेकेंड रुको. ग्राफ दिख रहा है ये सबको? बस अब मैंने वो नोट नहीं किया था क्योंकि वो मेरा हैंग था जो मैंने आपको लिखवाया.
Okay guys, now moving forward, आगे बढ़ते हैं अब इसी में स्टार्ट करें. Next, so we say from moving from equator to poles, population or organism density declines. With respect to influence of temperature on organism metabolism and growth. Organism के metabolism और growth से related. Fine, right? So this is what we state till this point जो हमने यहाँ पर define किया. Right? Now, अब इसी के बाद moving to the second factor, temperature के बाद water. और ये बेटा मैं फैक्टर उसी ऑर्डर में करा रही हूँ जिस ऑर्डर में इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द टेम्परेचर, सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द वाटर. ठीक है, अब वाटर का इंपॉर्टेंस फटाफट से बता दो मुझे जल्दी से. व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर? क्विकली, किसके लिए इंपॉर्टेंट होगा? For metabolic reactions of the body. ठीक है, इसके अलावा हमने कहा इट्स द सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर responsible for all biochemical reactions in organism or cell and also maintaining. किसको मेंटेन करेगा हमारे पास? ऑर्गेनिज्म के अंदर also maintaining cytosolic proportion or protoplasm content. Protoplasm content और cytosolic proportion को maintain करने के लिए. Understood till here everyone? Right? So this is what we state as the major factor, second important factor, that is called as the water. Right, next. Responsible for maintaining primary productivity of an ecosystem. What is the primary productivity beta? क्या meaning होगा इसका? Amount of glucose synthesis. Is it dependent on this guys? कौन से प्रोसेस में डिपेंडेंस होती है इसकी? प्लांट्स की वाटर के लिए Photosynthesis. फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन. रिमेंबर, लाइट रिएक्शन में मेन काम होता है हमारे पास, तो हम कहते हैं लाइट रिएक्शन के लिए सबसे मेन है हमारे पास. उसी के साथ साथ responsible to maintain aquatic biota. Aquatic biota को maintain करने के लिए भी responsible है. अब इसी aquatic biota के basis पे हम कहते हैं aquatic organisms can survive in, ये सर्वाइव कर सकते हैं हमारे पास इन द 3 zones. कौन कौन से हमारे पास? फ्रेश वाटर जोन,
फ्रेश वाटर जोन में salinity approximate equal to 0%. Why I say approximate, right, or less than 10%. हम ये लेके चलते हैं, राइट, कि सैलिनिटी या तो 0%, क्योंकि कभी भी 0 होती नहीं है मिनरल की वजह से, तो इधर इक्विवेलेंट टू 0% और लेस देन 10%. तो पहला हमारे पास आ गया फ्रेश वाटर जोन, दूसरा हमारे पास आ गया ब्रैकिश वाटर जोन. व्हाट इज ब्रैकिश वाटर? हु विल टेल मी? ब्रैकिश वाटर जोन where salinity, yeah, delta zone, very good, is greater than fresh water but less than salt water. Salt water से कम होगा हमारे पास, राइट, उसे हम डिफाइन करेंगे एज अ ब्रैकिश जोन. डेल्टा के अंदर, एस्टरीज के अंदर हमें ये मिलता है, राइट. तो दिस इज बीइंग डिफाइंड एज अ ब्रैकिश वाटर. एंड द थर्ड इज बेसिकली बीइंग द कंप्लीट सॉल्ट और द सेलिन एनवायरनमेंट, जहां पर हम कहेंगे सेलिनिटी इज ग्रेटर देन 50%. 50% से भी हमारे पास ज्यादा है. समझ आया पॉइंट, राइट. अब इसी के बेसिस पे हम कहते हैं बेस्ड ऑन दी सॉल्ट और सेलिन टॉलरेंस, इसके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड एज. ऑर्गेनिज्म को हमने दो में क्लासिफाई किया. मीनिंग आप बताओगे मुझे इसके वर्ड का? लेस देन 10% का मतलब बेटा मिनरल्स की वजह से साने कि सॉल्ट कंटेंट 10 से कम है. मिनरल्स हैं तो सॉल्ट जीरो तो नहीं कर सकते ना, मिनरल्स उसमें कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन तो देंगे सैलिनिटी का, राइट. तो वी कैन से सिंपली कि हमारे पास सॉल्ट कंटेंट, राइट, उसमें हमारे पास कम है ज्यादा है, उस तरीके से हम उसको स्टेट करते हैं. ठीक है बच्चे, राइट. तो अब हमने कहा यहाँ पर स्टीनोहेलीन, यूरीहेलीन. Tell me the thing. Stenoheline, यूरीहेलीन, राइट. फटाफट से मीनिंग बताओ. स्टीनोहेलीन हम किन्हें कहेंगे और यूरीहेलीन हम किसे कहेंगे? जल्दी से. स्टीनोहेलीन किसे कहेंगे? विच कैन नॉट टॉलरेट, जो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे हमारे पास, राइट. विच कैन नॉट टॉलरेट saline or salt concentration fluctuations, right. Yes, can tolerate, cannot, very good, right धनंजय, right. तो हमने कहा कैन नॉट टॉलरेट, saline और salt concentration के fluctuations को टॉलरेट नहीं कर सकते, hence restricted in स्पेसिफिक जोन, राइट. तो स्पेसिफिक जोन में रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे. जबकि यूरीहेलीन कौन से होंगे हमारे पास? कैन टॉलरेट सॉल्ट कंसंट्रेशन फ्लक्चुएशंस एंड एबल टू osmoregulate their internal environment, can move to different zones. अच्छा, फिशेस में सबको याद है एक मूवमेंट पढ़ते हो, कैटाड्रोमस और एनाड्रोमस मूवमेंट? थोड़ा ध्यान है ये मूवमेंट्स के बारे में, राइट. कैटाड्रोमस मूवमेंट, एनाड्रोमस मूवमेंट्स, राइट. जहां पर हम कहते हैं मूवमेंट बेसिकली किसके लिए होती है? सॉल्ट कंसंट्रेशन में कि लावा डेवलपमेंट करनी है, अपने यंग वंस की डेवलपमेंट करनी है, उसके हिसाब से मूव करते हैं, राइट. तो ये हमारे पास एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए, बेसिकली एनिमल्स के लिए, राइट. हम ये बेसिक कंडीशंस को सेट करते हैं, क्योंकि प्लांट्स तो हमारे पास एक ही स्पेसिफिक स्पेस में रहते हैं, तो हम ये एनिमल्स के लिए स्पेसिफिकली सेट करते हैं. तो एवरीवन क्लियर विद द वाटर? यस गाइस,
राइट, ये पूरा क्लियर हो गया अच्छे से. थर्ड फैक्टर पे चलूं. Right, now the third factor is light. Right, examples अंशिका. Right, इसके अंदर स्टीनोहेलिन, यूरीहेलिन. बेटा इसके एग्जाम्पल इससे लिस्ट नहीं करते हम क्योंकि वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर लाइक दिस. राइट, जो फिशेज हमारे पास मूव कर पाएंगी, जो फिशेज आपकी इधर पूरी की तरीके से आपका यहाँ पर मूवमेंट शो कर सकते हैं, वो यूरीहेलिन में चली गई. स्टीनोहेलिन में आपके वो गए जो आपके यहाँ पर नहीं जाएंगे. राइट, दे वोंट माइग्रेट इन दिस. राइट, तो उन्हें आप यहाँ पर लेके चलते हो. तो इसी वजह से हम इसके स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स नहीं लिखते हैं. राइट, और उसी के साथ साथ आपके प्लांट्स जो आएंगे ना, मैं भी आगे ना रेगुलेटर और कन्फर्मर का कंसेप्ट पढ़ाऊंगी. राइट, तो स्टीनो वर्ड हम बेसिकली कन्फर्मर्स के लिए यूज करते हैं. राइट, तो और मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर कन्फर्मर्स ओनली. तो स्टीनोहेलिन आपके मेजॉरिटी होंगे, यूरीहेलिन आपके स्पेसिफिक होंगे. राइट, तो कन्फर्मर रेगुलेटर में लिस्ट बनाऊंगी राइट एग्जांपल्स की, तो वहां आपको अच्छे से क्लियर होगा. राइट, लेकिन इन स्पेसिफिक कैटेगरी में हम एग्जांपल्स नहीं देते हैं. राइट, नाउ द नेक्स्ट वन इज अ लाइट. राइट, लाइट हमने कहा यहाँ पर another important abiotic factor monitoring organism growth as. अच्छा, अब लाइट का इफेक्ट हम पढ़ेंगे सबसे पहले फॉर प्लांट्स. ए कंडीशन पढ़ेंगे फॉर प्लांट्स, फिर एनिमल्स पे जाऊंगी. राइट, क्योंकि प्लांट्स पे मेन रोल है. राइट, तो फॉर प्लांट्स अगर डिफाइन करते हैं बच्चे, अगर सबको ध्यान हो तो प्लांट्स के अंदर लाइट इज प्लेइंग द रोल फॉर द मेन प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज द फोटोसिंथेसिस. राइट, पहला प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हो गया हमारे पास. बिल्कुल राइट, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर हमने बेसिकली कह दिया लाइट रिएक्शन के बारे में. सेकेंड हमारे पास हो गया फोटोमॉर्फोजेनेसिस. फोटोमॉर्फोजेनेसिस, that is the plant movements related to light. लाइट से रिलेटेड प्लांट की मूवमेंट्स. राइट, और लाइट से रिलेटेड मूवमेंट्स हमारे पास कौन सी हो जाएंगी? दैट आर दी फोटोट्रॉफिक रिस्पॉन्सेस. राइट, फिर अब हमने कहा यहाँ पर थर्ड कैटेगरी. राइट, फॉर द टास्क ऑफ द photoperiodism, that is the flowering response, that is SDP, LDP, short day plant, long day plant, and DNP. DNP किसे कहते थे? किसी को याद आ रहा है? Day neutral plants. Day neutral plants. Very good. Right, for the task of the seed germination. Right, seed germination के लिए हमारे पास कौन से हो जाएंगे? That are the photoplastic seeds. ये मेन एक्शन हो गए हमारे पास. राइट, सो दैट इज व्हाट वी डिफाइन फॉर द प्लांट्स. ये हमने प्लांट्स के लिए बेसिकली डिफाइन किया. राइट, तो हमने कहा फोटोसिंथेसिस, फोटोमॉर्फोजेनेसिस, फोटोपीरियोडिज्म, सीड जर्मिनेशन, इन फैक्टर्स के लिए हमने प्लांट के लिए मेन रोल पढ़ा. अब हमने कहा राइट, इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्लांट ग्रोथ इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या इफेक्ट है लाइट का? राइट, तो बहुत ध्यान से इसको समझना. अब अगर मैंने कहा बच्चे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, तो आई कैन सिंपली से कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को अगर हम डिफाइन करते हैं तो हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में बेस्ट एग्जांपल यहां पढ़ते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो हमारे पास एक सूटेड एग्जांपल है जिसके बेसिस पे मैं और सभी चीजों के बारे में पढ़ सकती हूँ. राइट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो हमारे पास प्लांट्स हैं, दे आर बीइंग प्रेजेंट इन द डिफरेंट लेवल्स. डिफरेंट लेवल्स में प्लांट प्रेजेंट है. बहुत ध्यान से देखना.
सबसे पहला लेवल आया मेरे पास हर्ब्स, फिर मेरे पास लेवल आया shrubs, then I am having the three more levels as the emergent layer or top canopy layer, middle canopy layer and under canopy layer. ये मेरे पास इसमें लेयर्स प्रेजेंट है. किस हिसाब से? कैनोपी का मतलब सबको पता है, दैट्स अ कंप्लीट बल्ज, राइट? जो ऊपर होता है ना बिल्कुल ग्रीन कलर का पूरा हेवियर पार्ट, उसे हम कैनोपी का नाम देते हैं ना, राइट? तो वो हमारे पास बेसिकली कैनोपी हुआ जो उसके सरफेस पे प्रेजेंट है, राइट? तो ऑन दैट बेसिस हमने कहा हर्ब, श्रब्स, अंडर कैनोपी लेयर, मिडिल कैनोपी लेयर एंड इमर्जेंट लेयर हमारे पास फाउंड हो गई. अब यहाँ पर हमने क्या कहा, देयर इज बीइंग द वन सोलर एनर्जी. कैन आई से सोलर रेडिएशन सबसे ज्यादा मुझे इन दोनों को मिलेंगी, फिर उसके बाद थोड़ी सी कम इनको, और हर्ब्स और श्रब्स और हर्ब्स को तो मिनिमम. एम आई राइट गाइस? राइट. तो इफ आई विल से सोलर रेडिएशन इंसिडेंस, इंसिडेंस कैसे हो रहा है, तो अब अगर मैं इसके बेसिस पे देखूं तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो हमारे पास श्रब्स और हर्ब्स हैं, दीज आर द टू लेयर्स, ये दो लेयर्स हमारे पास शेडेड प्लांट्स बने, और कैन आई से शेड प्लांट्स, राइट? शेड प्लांट्स में कह दिया. और ये तीन मेरे पास जो बने 3, 4 and 5, दे आर कॉल्ड एज सन प्लांट्स, जिनको सोलर रेडिएशंस मिल रही हैं अच्छे से, राइट? सो ऑन दैट बेसिस अगर हम यहाँ देखें तो टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स on the basis of incidence of solar radiation, सोलर रेडिएशन के इंसिडेंस के बेसिस पे मैंने दो कैटेगरीज बना दी. वन इज कॉल्ड एज दी हेलियोफाइट्स or called as the sun plants, and another is called as the sheophytes, called as the shade plants. Got this point, everyone? Can I say for the sun plants, light is always available? Light is always available, right? Where for shade plants, light can be a limiting factor. Got this point, everyone? अच्छा, एक अगर लाइन याद आ रही हो तो फोटोसिंथेसिस में एक लाइन आपको मैंने पढ़ाई थी, that except for shade plants and dense forest, light is rarely a limiting factor. क्या ये लाइन यहाँ से प्रूव हो गई? Yes, ma'am. Right, except for Yes, ma'am. shade plants or dense forest, light is rarely a limiting factor, right? That is what we stated over here as the whole condition. Got this point, everyone? Right, तो ये हमने condition यहाँ पर रखी, right, for this particular category. Clear? Right, पूरा समझ आया? अच्छा, अब उसी के बाद arrangement of plant plants or vertical distribution of plants on the basis of canopy structure, or we say height, the
process is called stratification. Process को हमने क्या कहा? Stratification. Strata में arrange करना. That is called as stratification. Right? Specific property of tropical rainforest. Everyone got the point? Concept समझ आया सबको अच्छे से? Clear है? Done है यहाँ तक अच्छे से? Completed with this, आगे बढ़ूं? लिख लो, नोट कर लो. कंप्लीटेड यहाँ तक बच्चा? डन है? Yes. सबको समझ आ गया अच्छे से? Right? Now, effect of light on organism growth in एक्वाटिक इकोसिस्टम. अब हम स्टेट करेंगे एक्वाटिक इकोसिस्टम के बारे में. एक्वाटिक इकोसिस्टम में कैसे होता है और बहुत ध्यान से इसको समझना है. टेरेस्ट्रियल क्लियर है सबको? डन है बच्चा? Yes, ma'am. Good. Now moving to the aquatic ecosystem. डायग्रामेटिक है सब कुछ, अच्छे से क्लियर करना है इसके बारे में. नाउ इन दिस कंडीशन अब हमने कहा व्हेन वी टॉक अबाउट दिस होल एक्वाटिक इकोसिस्टम, तो एक्वाटिक इकोसिस्टम को हम बच्चे जोन्स में डिवाइड करते हैं. ये मेरे पास है पूरा कॉल्ड ओपन वाटर जोन और कॉल्ड एज लिम्नाटिक जोन. इसको मैं डिफाइन करती हूँ ओपन वाटर जोन कॉल्ड एज लिम्नाटिक जोन. राइट? ये उसके साइड का शोर एरिया है. शोर एरिया कौन सा होता है? जो साइड में नहीं होता वाटर के, सी के जो साइड में होता है जोन. राइट? दैट इज कॉल्ड एज अ लिटोरल जोन. ये लैंड एरिया हो गया उसके अराउंड. इन दोनों को हमने नाम क्या दे दिया? लिटोरल जोन. पॉइंट समझ आया सबको? राइट? तो मैंने कहा यहाँ पर लिटोरल जोन, लिम्नाटिक जोन. ठीक है, तो पहले मैं जोनेशन कराती हूँ, फिर आपको इसका प्रॉपर मीनिंग समझाती हूँ. अब मैंने कहा सोलर रेडिएशंस जब इंसिडेंट होंगी, राइट, सोलर रेडिएशंस व्हेन इंसिडेंट ओवर दिस, तो अगर मैं सोलर रेडिएशन की बात करूं तो क्या वाटर की डेप्थ के अराउंड नीचे तक जाते जाते सोलर रेडिएशन का इंसिडेंस रेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? टेल मी गाइस. रेट ऑफ सोलर इंसिडेंस decrease with respect to the water depth declines. Understood? Good. अब उसके बेसिस पे हमने कुछ zones बना दिए. Now we say the topmost zone, इतना zone जो मेरे पास बना, ये topmost मेरे पास वो zone है जिसमें light incidence सबसे अच्छा है. The great light incidence is there in it, right? तो we will say light incidence बहुत अच्छा है इसके अंदर. फिर मैं नीचे गई तो मेरे पास light incidence decrease हो गया. Now I'll say the zone is having the reduced light incidence. Light incidence मेरे पास कम हो चुका है. Right? Then again we move downward. फिर से light incidence मेरे पास
कम हो चुका है, वापस से मेरे पास लाइट इंसिडेंस का रेट डिक्लाइन हो गया. एंड द लास्ट जोन विच इज बीइंग देयर, जहां लाइट इंसिडेंस बिल्कुल भी नहीं है, नहीं बिल्कुल एब्सेंट है. तो अब हमने कहा यहाँ पर लाइट इंसिडेंस के बेसिस पे जो मैंने जोन बनाए, दिस इज ए, बी, सी एंड डी, राइट. अब मैंने यहाँ पर कहा बच्चे, जो मेरे पास है ए जोन है, इसमें लाइट इंसिडेंस सबसे अच्छा है. आई नेम दिस जोन एज दी यूफोटिक जोन, उसको नाम दिया यूफोटिक जोन. नीचे आते आते लाइट इंसिडेंस कम हो गया. डिस्फोटिक जोन, नेग्लिजिबल. प्रोफंडल जोन, बिल्कुल एब्सेंट. बेंथिक जोन. ये मेरे पास 4 जोन हो गए, राइट. तो मैंने कहा मेरे पास अब इसके अराउंड अगर मैं जा रही हूं, राइट, तो आई विल से रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी का क्या मीनिंग बताया था अभी? फोटोसिंथेसिस डिक्लाइंस. ऑब्वियसली बात है, रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा मेरे पास, राइट. सो ऑन दैट अकाउंट वी विल से रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी डिक्लाइंस एंड वी मूव फ्रॉम यूफोटिक, डिस्फोटिक, प्रोफंडल एंड बेंथिक जोन एज अ लिम्नाटिक जोन. अब मुझे ये बताओ, लिटोरल और लिम्नाटिक में से किसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी? कहाँ कांस्टेंट लाइट मिल रही है? Where there is a complete constant light which is being visible. Constant light मुझे कहाँ मिल? Littoral. लिटोरल. वेरी गुड. अगर लिटोरल में कांस्टेंट लाइट मिल रही है, राइट, तो क्या मैं कह सकती हूँ दिस लिटोरल जोन is the zone of highest productivity with constant incidence of solar radiation. सोलर रेडिएशन का कांस्टेंट इंसिडेंस होगा, राइट. तो हम उसे नाम क्या देंगे? लिटोरल जोन, राइट. दैट इज व्हाट वी नेम एज द लिटोरल जोन. नेक्स्ट आ गया, वी हैव लिम्नाटिक जोन. दैट्स द जोन ऑफ ओपन वाटर बॉडी with decline rate of light incidence. On the basis of which it is categorized as, इसको हमने categorize किया, categorized as फोर जोन्स में हमने कैटेगराइज किया इसको, राइट. कौन कौन से 4 जोन बताए, फटाफट से बताओ. नंबर फर्स्ट, टेल मी गाइस. Euphotic. वेरी गुड. यूफोटिक. We say euphotic zone is being the one where light incidence is above the compensation point. What was the compensation point? Can I say, remember, compensation point is that minimum light where the minimum rate of photosynthesis will occur. Compensation point से ज़्यादा light incidence हुआ, leading to the high rate of photosynthesis or productivity. Am I right, guys? Point समझ आया? Right. Second, अब हमारे पास आ गया डिस्फोटिक जोन. लाइट इंसिडेंस कम या ज्यादा? कम हो गया हमारे पास. अगर लाइट इंसिडेंस कम बचे तो अब मैं इसमें क्या कहूंगी?
that light incidence is equal, या तो equal कर दो या फिर less कर दो, equal or less than the compensation point, where we say generally it is equal to compensation point, right? अगर हमारे पास equal आ रहा है तो high rate तो नहीं आएगा. We can say photosynthesis का rate कैसा हो गया बेटा? Reduced, right? Reduced rate of photosynthesis as compared to euphotic zone. Euphotic zone के comparatively हमारे पास कम हो गया. दोनों zone clear हुए सबको अच्छे से, right? Now the third one is profundal zone or called twilight zone. Twilight पता है जैसे तारे होते हैं, मतलब लाइट उस तरीके से दिखेगी, जल बुझ जल बुझ जल बुझ, राइट? तो कभी है कभी नहीं है, बहुत कम है, राइट? ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, राइट? तो हम कहते हैं इट इज लाइक अ मूवी, राइट? एग्जैक्टली, मूवी, राइट 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 अंशिका, ट्विलाइट इज अ मूवी, यस. नाउ प्रोफंडल और ट्विलाइट जोन, तो हमने कहा लाइट इंसिडेंस is negligible. Negligible light incidence it is. बिल्कुल फिनिश टाइप में negligible light incidence it is, right? तो we can say zone of perpetual darkness. मतलब पूरी डार्कनेस भी नहीं है, वैसे भी डार्कनेस नहीं है, प्रॉपर भी नहीं है, राइट? और थोड़ा बहुत डार्कनेस भी दिख रहा है आपको, राइट? तो इसलिए कहोगे परपेचुअल डार्कनेस, राइट? लीस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, सबसे लीस्ट है, राइट? वी विल से लीस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट वी विल डिफाइन ओवर हियर, राइट? उसी के बाद फोर्थ जोन जो हमारे पास आया, which is called as the benthic zone. Can I say it as a complete dark zone or name as the no light zone? तो यहाँ तो फोटोसिंथेसिस एक्सपेक्ट करना ही बेकार है बेटा, यहाँ तो फोटोसिंथेसिस कुछ होगा ही नहीं, राइट? तो अब अगर मैं कहूँ if I move from euphotic to dysphotic to profundal to benthic, right, which is having the highest productivity इन चारों में से, which is having the highest productivity? Euphotic. Euphotic, which is having the highest rate of decomposition. Decomposition का rate highest किसमें? Highest rate of decomposition. Benthic, very good. Right. बिल्कुल. तो अब हमने कहा यहाँ पर zone of productivity in limnatic zone is euphotic zone, right? And zone of decomposition is benthic zone. याद हो गया सबको पॉइंट? क्लियर एवरीवन, राइट? अच्छा, अब अगर मैं कहूं ऑर्गेनिजम्स अबंडेंस, ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स अलाइनमेंट इन लिम्नाटिक जोन, लिम्नाटिक जोन में प्लांट के अलाइनमेंट. अब ये जो प्लांट्स होंगे लिम्नाटिक जोन में, कैन आई नेम देम एज फाइटोप्लैंक्टॉन्स बच्चा? इज इट फाइन इफ आई नेम देम एज फाइटोप्लैंक्टॉन्स? ठीक है, एक्चुअल में फाइटोप्लैंक्टॉन्स ही है ना हमारे पास, राइट? तो अब अगर मैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स की बात करती हूँ तो टेल मी द एग्जांपल्स ऑफ देम. कौन कौन से एग्जांपल्स होंगे हमारे पास? एल्गी, डायटम्स, ये मेन एग्जांपल्स हैं हमारे पास,
राइट. तो अब अगर मैंने लिम्नाटिक जोन में बनाया with result of increasing water body depth and reduced light intensity. Light intensity कम हो रही है, इंसिडेंस कम हो रहा है. तो अब अगर मैं ऑर्गेनिजम्स को अलाइन करती हूँ तो टॉप मोस्ट में मैं कौन से ऑर्गेनिज्म रखूं? कैन आई प्लेस ग्रीन algae? ग्रीन algae को रखूं. फिर Yes, उसके ma'am. बाद ये मैंने पहले भी शायद आपको पढ़ाया होगा, Brown algae. ब्राउन algae प्लस डायटम्स और डेप्थ में रेड algae. and depth Red में हमारे algae. पास red algae. Right. तो green algae are being the one which show high productivity. Red algae is being the one which show chromatic adaptation. क्या था chromatic adaptation? Who will tell me? Also called as Goodikoff phenomenon. याद आ रहा है? Goodikoff phenomenon, complementary chromatic adaptation. That's the ability इनकी कि वो color different change कर सकते हैं अपने with respect to change in light intensity, right? तो उसे हम क्या कहते हैं? Complementary chromatic adaptation. That's a feature for the red algae with some of the member of the cyanobacteria also. And in the decomposition zone, in benthic zone, which organism are maximum? कौन से organism maximum present होंगे? Decomposers. Decomposers का मतलब? Very good. Bacteria and fungi are present in abundance. समझ आ गया point? Clear everyone? ठीक है? And they are going to carry out the process of mineralization plus humification after decomposition of organic matter. That's basically about the effect of light. ये light का effect है हमारे पास. Completed यहाँ तक का point, everyone? Yes. Good, right? अच्छा, अब animals के हिसाब से बताओ. If I say with respect to the animals, क्या एनिमल्स के ऊपर लाइट का इफेक्ट ऑन फीडिंग एंड फोराजिंग हैबिट, खाने को ढूंढना और खाना, ये मैनेज करेगा, राइट? उसके साथ साथ इट इज ऑल्सो गोइंग टू मैनेज रिप्रोडक्टिव एंड ब्रीडिंग हैबिट्स, इनको भी मैनेज करेगा, राइट? एंड थर्ड, also going to be responsible for growth and movement. Growth और movement के लिए भी responsible है. तो animals के लिए these are the effect of light. Got this point, everyone? Clear है बच्चा? Yes, ma'am. Understood everyone? Yes, ma'am. मैम बॉटम फीडर्स और जो टॉप फीडर्स होते हैं वो भी इसी पे डिपेंड करते हैं. हाँ.
ओके अंशिका, ओके फाइन। मैम डाउनस्ट्रीम क्या था? क्या डाउनस्ट्रीम? डाउन डाउनस्ट्रीम क्या बच्चे? मैम हाँ। था। ये ऊपर वाला डायग्राम? नो मैम पिछले मैं एक दिन टेलीग्राम पे सेंड करती हूँ। हाँ मुझे वो बता दो। राइट, नंबर ऑफ फिश caught in the trap can measure total population density of fish in the lake. Right, yes you can, right, but it won't be the total density. It will be the density, वो density है जो आपकी easily motile है, movable है, उसको आप कर रहे हो, ठीक है, उसको आप करते हो, राइट। तो ऑन दैट बेसिस यू कैन डिटरमाइन, राइट। ब्रीडिंग हैबिट्स आने, ब्रीडिंग हैबिट दैट्स व्हाई, राइट, क्योंकि आप ये देखते हो ब्रीडिंग हैबिट के अंदर स्पेसिफिकली, राइट, कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो द प्रेजेंस ऑफ द लाइट के प्रेजेंस में, राइट, दे आर गोइंग टू एबल टू गेट रिप्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, राइट। तो वो सेंसिटिविटी का जो रेट बढ़ता है एनिमल्स के अंदर, राइट, तो इट विल हेल्प इन द इम्प्रूविंग द ब्रीडिंग हैबिट, राइट, एंड फॉर द सर्च ऑफ द पार्ट